did the same thing. Cain couldn't believe that was right. केन ने वही बात की। केन इसका विश्वास नहीं कर सका। क्या ये ठीक है? He said, God is holy, God is pure, and God is beautiful. उसने कहा परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर निष्कलंक है, परमेश्वर सुंदर है। So I will get me some flowers, and I'll take the flowers, and I'll make a fine, great altar, and I'll show my reverence to Him. इसलिए मैं कुछ सुंदर फूल लूंगा और मैं फूल लूंगा और मैं शानदार बड़ी वेदी बनाऊंगा और उसको अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करूंगा। I'll get up before and I'll bow down before Him and worship that God. मैं उसके सन्मुख उठूंगा और झुकूंगा और उस परमेश्वर की आराधना करूंगा। And I'll put flowers on the altar because, my father and mother eat some apples, some fruit in the Garden of Eden, and that's the thing that brought me out. और मैं वेदी पर फूलों को चढ़ाऊंगा क्योंकि आप समझते हो कि मेरे पिता और माता ने कुछ सेब खाए थे, कुछ फल अदन की वाटिका में, और इसी बात ने मुझे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। And so I will go back because I'll make it beautiful. God just can't turn my big cathedral down. और इसलिए यही है, मैं वापस जाऊंगा क्योंकि मैं इसे सुंदर बनाऊंगा। परमेश्वर मेरे बड़े आराधनालय को तिरस्कृत नहीं करेगा। Why, I'll be too big a cathedral. I'll make it so pretty so it'll attract God's attention. क्यों? आराधनालय मेरे पास बहुत बड़ा होगा। मैं इसे इतना सुंदर बनाऊंगा कि यहाँ तक कि वो परमेश्वर का ध्यान आकर्षित कर लेगा। Satan is the one that dwells in beauty. शैतान वो है जो सुंदरता में वास करता है। That's exactly what the scripture says. वचन ठीक यही कहता है। That's the reason sometimes a pretty woman is a bait for Satan. यही कारण है कभी कभी एक सुंदर महिला शैतान का फंदा बनती है। If he can just get a hold of her, he can twist more men into hell than he could with all the barrooms in the country. That's right. See? यदि वे उसे थामे रह सके तो वो राष्ट्र के मदरेलाओं की अपेक्षा अधिक लोगों को नरक में डाल देगा। ये ठीक बात है, समझे? Or handsome, some great handsome man that wouldn't stand up in his trueness of manhood. See? Again, he could swing them women to the devil and to send them to hell. Yes. या सुंदर, कोई महान सुंदर व्यक्ति जो कि अपनी मनुष्यत्व की सत्यता में स्थिर नहीं रह सकेगा, देखिए फिर से वो उन महिलाओं को शैतान के पास पहुंचा सकता है और उन्हें नरक में भेज देगा। जी हाँ श्रीमान। Notice, Satan dwells in beauty. ध्यान दें, शैतान सुंदरता में वास करता है। What did he try to do in the beginning? उसने आरंभ में क्या करने का यत्न किया? Make a more beautiful kingdom than Michael's was. Moved over in the north and took 2/3 of the angels with him. मिकाइल के राज से अधिक सुंदर राज्य बनाता है, उत्तर की ओर चला गया और 2/3 स्वर्गदूतों को अपने संग लिया। See whose son that was and had that nature in him? देखिए वो किसका पुत्र था, उसमें उसका स्वभाव था। Satan's son. Certainly was. शैतान का पुत्र, निश्चय वो था। Now he built the altar and he knelt down and he worshipped. अब वो वेदी बनाता है और घुटने टिकाकर और उसने आराधना की। He went through everything that Abel did. उसने हर चीज की, केन ने, जो हाबिल ने की। But Abel knew that it wasn't that. It was blood that took him out. परंतु हाबिल जानता था कि ये वो था, वो लहू था जिसने उसे बाहर निकाला। He knew that was it. It was the sex blood. वो जानता था कि ये वो था, ये यौन था, लहू। So he took a little animal and offered it up on a rock and chopped its neck. इसलिए उसने छोटा सा पशु लिया और चट्टान पर बलिदान किया और उसकी गर्दन काटी। Notice, Cain, God told him, he said, why don't you worship like your brother? And you'll do all right. You'll do well if you'll do that. ध्यान दें, कैन, वो परमेश्वर ने उसे बताया, उसने कहा कि तू क्यों नहीं अपने भाई के समान आराधना करता है और तू ठीक करेगा, यदि तू ऐसा करेगा तो अच्छा करेगा। But no, he knew too much about it. He rejected the original vindicated word. परंतु नहीं, वो इस विषय में कुछ जानता था। देखिए, उसने मूल को अस्वीकार कर दिया, एक प्रमाणित वचन। If that ain't his children today, see? यदि वे आज उसके बालक नहीं हैं, समझे? Now, look, God had testified. The Bible said, Hebrews the 4th chapter, or the 11th chapter, God testifying of his gift that he was righteous. अब देखिए, परमेश्वर ने प्रमाणित किया, बाइबल ने कहा, इब्रानियों का 4था अध्याय या 11वां अध्याय, परमेश्वर अपने वरदान को प्रमाणित कर रहा है कि वो धर्मी है। God vindicated his offering. परमेश्वर ने अपने बलिदान को प्रमाणित किया। God made
that was why he accepted. That was his word, his plan. परमेश्वर ने सिद्ध किया कि ये वो था जो उसने स्वीकार किया, ये उसका वचन था, उसकी योजना। And told Cain said, do the same thing and live. और केन को बताया कि वही कर और जीवित रहे। But do you think he would forfeit his idea? No, sir. परंतु क्या आप सोचते हैं कि वो ये करेगा, अपने विचार को छोड़ेगा? नहीं श्रीमान। He was an unbeliever. He walked right out. That's right. वो एक अविश्वासी था और वो सीधा बाहर चला गया। ये ठीक बात है। Cain did the same thing. केन ने वही किया। Nimrod did the same thing. Unbelievers. निम्रोद ने वही किया, अविश्वासी। He did not believe. उसने विश्वास नहीं किया। Belteshazzar, the same thing. Or Nebuchadnezzar. बेल्शेजर ने वही किया, यद्यपि नबूकदनेस्सर। Though having Daniel as his God, called him Belteshazzar, which was the name of his God. Saw Daniel do the great works of God. यद्यपि डैनियल उसके पास देवता समान था, उसे बेल्शेजर कहा, जो कि उसके ईश्वर का नाम था। डैनियल को परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य करते देखा। And then he knew that Belteshazzar believed, or that Daniel was a god, so he made an image to him and put it up out there and made everybody to worship it, and so forth. और तब वो जान गया कि बेल्शेजर ने विश्वास किया, यानी वो डैनियल ईश्वर था, इसलिए उसने उसकी प्रतिमा बनाई और वहां बाहर स्थापित की, ताकि प्रत्येक उसको दंडवत करे और आदि आदि। See, the Gentile kingdom come in with forcing of the worship of the image of a holy man. देखिए, अन्य जातियों का राज्य पवित्र मनुष्य की प्रतिमा की आराधना की जबरदस्ती के साथ आया। And the Gentile kingdom goes out with the forcing of the image of a holy man. Same way. और अन्य जाति का राज्य पवित्र मनुष्य की प्रतिमा की जबरदस्ती के साथ चला जाता है। देखिए, ठीक उसी प्रकार से। And there was a handwriting on the wall of unknown tongues at the beginning of the Gentile kingdom that no one could read but that prophet. और वहाँ दीवार पर हस्तलेख था, अनजानी भाषा अन्य जाति के राज्य के आरंभ में थी, जिसे भविष्यवक्ता को छोड़ और कोई नहीं पढ़ सकता था। And there's a handwriting on the wall today. That's right, Ichabod, that the glory of God has departed from them things. और आज दीवार पर हस्तलेख है, ये ठीक बात है, इच्छा बोध, ये परमेश्वर की महिमा उन चीजों को छोड़कर चली गई। And the handwritings on the wall can be read by the spiritual mind that believes in spiritual things. It's been born of the Spirit of God. और हस्तलेख दीवार पर है और आत्मिक बुद्धि से पढ़ा जा सकता है, जो आत्मिक बातों में विश्वास करता है और परमेश्वर के आत्मा से उत्पन्न हुआ है। Old Belteshazzar goes out and gets these vessels of the Lord to drink wine. बूढ़ा बेल्शेजर बाहर गया और प्रभु के बर्तनों को लिया और उसमें दाख मधु पिए। Why? He was an unbeliever. क्यों? वो एक अविश्वासी था। He thought he was a believer, but he was an unbeliever. उसने सोचा कि वो एक विश्वासी है, परंतु वो एक अविश्वासी था। That's it. He disbelieved the word. देखिए, यही है, उसने वचन का अविश्वास किया। Ahab, he was an unbeliever, though he acted like he wasn't. आहाब एक अविश्वासी था, यद्यपि उसने ऐसा कार्य किया कि वो नहीं है। No, he was amongst the believers, but he was an unbeliever. नहीं, वो विश्वासियों के मध्य में था, परंतु वे एक अविश्वासी था। What did he do? He married an idolatress and brought idolatry right into Israel. उसने क्या किया? उसने एक मूर्ति पूजक से विवाह किया और मूर्ति पूजा को इजराइल के मध्य में ले आया। He was an unbeliever. We know that. वो एक अविश्वासी था, हम ये जानते हैं। They deny the whole of the word of God to be true. उन्होंने परमेश्वर के समस्त वचन को कि वो सत्य है नकार दिया। The unbeliever is, now remember, he's a hypocrite. अविश्वासी, देखिए, स्मरण रखिए, वो एक ढोंगी है। And he acts like that he says he believes it, but he denies it. और वो इस प्रकार व्यवहार करता है, वो कहता है कि वो विश्वासी है, परंतु वो इसका इनकार करता है। He said, well, so much of it is well. उसने कहा, ठीक है, इसमें से इतना ही पर्याप्त है। But if all of it isn't right, then that makes him an unbeliever. परंतु यदि सब लोग ठीक नहीं हैं, तो ये उसे अविश्वासी बना देता है। You've got to believe every tittle and every jot and everything that's said in there. It's got to be true. आपको उसके हर शीर्षक, हर बिंदु का विश्वास करना होगा। हर वो बात जो वहाँ कही गई है, उसे सत्य होना ही है।
If it isn't true, if you say, "No, I don't believe that," well, then you're an unbeliever. Amen. यदि वो सत्य नहीं है, यदि अब आप कहते हैं मैं उसका विश्वास नहीं करता, तो ठीक है, फिर आप अविश्वासी हैं। As a guy said to me one time, a minister said, "I don't care, Mr. Branham, how many people you could produce that you said was healed, I wouldn't believe it." वह एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, एक बार एक सेवक ने मुझसे कहा, श्रीमान ब्रनम, मैं चिंता नहीं करता कि आप कितने भी लोगों को उत्पन्न कर दें जिनके लिए आपने कहा कि वे चंगे हो गए, मैं इसका विश्वास नहीं करूंगा। I said, "Certainly not. You can't believe it. You're an unbeliever. It wasn't for you. It's only for the believers." मैंने कहा, निश्चय ही आप इसका विश्वास नहीं कर सकते, आप अविश्वासी हैं, ये आपके लिए नहीं था, ये केवल विश्वासियों के लिए है। You've got to believe it. See, and they do not believe it. आपको इसका विश्वास करना ही है, समझे, और वे इसका विश्वास नहीं करते। So when you see a person that, well did Paul speak of the prophets, saying that to be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having forms of godliness but denying the power there, the power of the word, from such turn away. इसलिए जब आप किसी व्यक्ति को उसमें देखें कि क्या पौलुस ने उन भविष्यद्वक्ताओं के विषय में कहा है, कह रहा है कि वे होंगे ढीठ, घमंडी, सुख विलास के चाहने वाले, बजाय परमेश्वर के प्रेम के भक्ति का भेष धरते हैं, परंतु उसकी सामर्थ का इनकार करते हैं, वचन की सामर्थ का, ऐसों से अलग रहना। Notice, they deny the whole of the word, but in every form very religious. ध्यान दें, वे संपूर्ण वचन को नकारते हैं, परंतु हर रूप में वे धार्मिक हैं। They are unbelievers in the true word, though it be vindicated. वे सच्चे शब्दों में अविश्वासी हैं, यद्यपि ये प्रमाणित हो चुका। All through every age, God vindicated the word of these people I've talked about, Noah, on down to Moses and all the prophets and forth. इन सारे युगों में से होते हुए परमेश्वर ने इन सब लोगों के वचन को प्रमाणित किया, जिनके विषय में मैंने बात की, नूह से मूसा और वे सारे भविष्यद्वक्ता और आदि आदि। God spoke to the supernatural and vindicated the word, and yet those people walked right out on it. परमेश्वर अलौकिक प्रमाणित वचन के द्वारा बोला, और तब भी वे लोग इस वचन को छोड़कर चले गए। Here's these disciples standing there, them 70, and watching Jesus do the things that he did, and know the Scripture, and him telling them that that was the age that this was to take place. और यहाँ पर ये चेले, वे 70 खड़े हुए हैं और यीशु को सब कार्य करते देखा जो उसने किए, और पवित्र वचन को जानते हैं, और वो उन्हें बता रहा है कि वो युग था कि ये घटित होना था। And then when he said something, the Son of Man, what would you say? When he began to tell them about breaking the bread and so forth, and when he had tell them about great spiritual things. और तब जब उन्होंने कुछ कहा कि मनुष्य का पुत्र, तब तुम क्या कहोगे? जब वो उन्हें रोटी तोड़ने के विषय में बताने लगा और आदि आदि, और आगे बढ़ते हुए उन्हें आत्मिक बातों के विषय में बता रहा था। They said, "Oh, this is a hard saying." और उन्होंने कहा, ओह, ये तो कठिन बात है। He said, "What are you going to say then if the Son of Man, you see him ascend up into heaven, where he come from?" उसने कहा, तब तुम क्या कहने जा रहे हो यदि तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर स्वर्ग में जाते हुए देखोगे, जहाँ से वो आया है? That is it the flesh or is it the spirit that quickens? See? कहा, क्या शरीर या क्या ये आत्मा है जो जिलाता है? समझे? And then they moved away. So, I can't believe that. See? और तब वे चले गए, कहा, ओह, ये नहीं, मैं इसका विश्वास नहीं कर सकता। समझे? They walked right out on the word. वे वचन पर छोड़कर चले गए। They won't even stay to see what takes place. वे ये देखने के लिए भी नहीं रुकेंगे कि क्या घटित होता है। That is the unbeliever. यही अविश्वासी है।